to all media friends who have come here on short notice. We have called this press conference to mention about the joint effort of Goa Police in cracking the double murder of Richard DiMello and Abhishek Gupta, which happened on 5th November 2025 and 6th November 2025's intervening night. So we have conducted a coordinated and a well-planned operations based on months of investigation, which included teams of Crime Branch, North District Police, Cyber Cell, PRISM. A lot of officers were involved at different level to work on whatever leads were available. The teams had visited Delhi, Mumbai, Chhattisgarh, Odisha, and many other places in the search of accused. But we were able to trace him day before yesterday in Odisha, and we had apprehended him yesterday in Cuttack district of Odisha. So I'll tell you in detail what had happened. The accused. So what had happened that there was a person called George Norona, a resident of Muddawado, Saligaon. He reported in the afternoon of 6th November that he has discovered two dead bodies. Both of them were his friends. One was Richard DiMello, another was Abhishek. And he said that there was a third person called Jagannath Bhagat, who has probably killed both of them and has fled from the house. So there was a rented house of George in which Abhishek and Jagannath Bhagat were living, and both of them were working for Richard DiMello. So prima facie, it was since Jagannath Bhagat was missing from that place, and based on his the CCTV analysis of the adjoining area and his suspicious movement, it was almost confirmed that he had only committed both the murders, and he had fled from Goa. So when we started checking the CCTV footage, we had got this information on 3 p.m. around 3 p.m. and myself and IG Goa, SDPO Porvorim, all of us were on spot, and we were trying to gather the evidences. So वहाँ पे हमने CCTV एनालिसिस किया तो वहाँ से लग गया था कि जगन्नाथ भगत एक स्कूटी लेके वहाँ से गायब हो गया हेलमेट पहन के. सो वी हैड स्टार्टेड ट्रैकिंग हिम. वो फिर वहाँ से रेलवे स्टेशन करमाली और थिविम और कई जगह हमने उसको ढूंढने की कोशिश की. मडगांव बस स्टैंड के आसपास भी काफ़ी टाइम हमारी टीम वहाँ पर लगी रही. फिर मडगांव रेलवे स्टेशन, उसके बाद फिर हम छत्तीसगढ़ वगैरह भी हमारी टीम जाके आई, लेकिन कोई सक्सेस नहीं मिली. तो इसमें हुआ क्या था कि जब हमने बॉडी दोनों देखी तो इट वाज फाउंड दैट देयर वाज अ शार्प एज्ड वेपन इंजरी ऑन द नेक and other parts of the body of both the deceased. So probably the accused had used knife or similar kind of weapon to kill both of them, and the motive was not clear at that time. It was known that he was working for Richard DiMello along with Abhishek. So there would have been some dispute which can be confirmed only when accused is caught, because other two are dead, third person is not there. So only when we catch the accused, then only we will be able to know what had actually happened. So we were searching for him. All the legal formalities were done at that spot. PM examination, bodies were sent for PM, and ESAKSH recording was done. जो भी आसपास witnesses थे उनका statement लिया था, documentation हमने सारा किया, लेकिन accused का ना मिलना was a major problem. But we started searching for him based on his historical records. जो हमारे को उसका डॉक्यूमेंट्स मिले, जो उसका टेक्निकल चीज़ें हमको मिली, मोबाइल नंबर वगैरह, उसके बेसिस पे हमको जो भी उसका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मिला कि वो कहाँ से आया था, कहाँ रहता था, पहले कहाँ काम करता था, वहाँ सब जगह जाके हमारी टीम आई. और लेकिन तब नहीं मिला तो उसके बाद भी लेकिन काम करना बंद नहीं किया हम लोगों ने. सो जनरली पब्लिक को ऐसा लगता है कि हम लोग गोवा पुलिस उतना कमिटेड नहीं है किसी केस को लेके, या फिर उतनी मेहनत नहीं कर रहे शायद, इसलिए कोई अक्यूज नहीं मिला. बट आई वांट टू अश्योर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कि हम हर केस में इक्वल मेहनत करते हैं, और जब कोई हीनियस केस होता है तो इट्स नॉट जस्ट दैट पर्टिकुलर यूनिट, बाकी यूनिट भी उसके साथ काम करते हैं. तो
अगर कोई नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का केस हुआ है और हीनियस केस है, उसमें क्राइम ब्रांच भी इन्वॉल्व होगा, उसमें साइबर भी इन्वॉल्व होगा, मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ। तो बैकग्राउंड में सब लोग काम कर रहे थे और हमने एक दूसरे के साथ इनपुट भी शेयर कर रहे थे। कभी कभी ऐसा होता है इनपुट शेयर नहीं करते एक दूसरे के साथ। इस केस में सबसे अच्छा हुआ कि तुरंत इनपुट शेयर हो रहे थे कि कुछ डिस्ट्रिक्ट को कुछ मिला है तो वो क्राइम ब्रांच को बता रहा था, क्राइम ब्रांच को कुछ मिला है तो डिस्ट्रिक्ट को बता रहा था। तो इस तरीके से हमने sustained efforts were undergoing to gather continuous technical evidences and human intelligence, चूँकि अक्यूज्ड रायपुर छत्तीसगढ़ में रहा लंबे टाइम, तो रायपुर में हमने काफ़ी तहकीकात की कि रायपुर में कहाँ रहता था, उसके कौन दोस्त थे, उसके कौन रिश्तेदार थे, उसका पूरा फैमिली ट्री बनाया अक्यूज का, उसकी कितनी बहनें थी, कितने भाई थे, माँ कहाँ की है, बाप कहाँ का है। लेकिन उन सब से हम पूछताछ कर रहे थे कंटिन्यूसली, उनको जा जाके ये भी पूछ रहे थे कि, तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। बट हमको सडनली 2-3 दिन पहले इनपुट मिला, क्योंकि हम टेक्निकल एनालिसिस को कंटिन्यूसली कर रहे थे, तो उसके बेसिस पे हमको इनपुट मिला कि अक्यूज्ड उड़ीसा में हो सकता है। तो उड़ीसा को हमने फिर जिस जगह पर उसका उड़ीसा में हमको फुटप्रिंट मिल रहा था, डिजिटल फुटप्रिंट, उसको हमने फर्दर उसको डेवलप किया। हमारी एक टीम क्राइम ब्रांच की वहाँ गई, लेड बाय PI सचिन लोकरे, PSI माधव नायक एंड हेड कांस्टेबल चंद्रशेखर पेडनेकर। ये तीनों वहाँ पे गए और वहाँ पे इन्होंने जो भी उसके ट्रेसेस अवेलेबल थे उसके मूवमेंट के, उस सब को अच्छे से देखा, उस सब को एक दूसरे के साथ कोरोबरेट किया कि कहाँ कहाँ हो सकता है वो, अगर यहाँ पे देखा गया है, यहाँ पे देखा गया है तो क्या कहाँ पे काम कर रहा होगा, कहाँ पे रह रहा होगा। तो उसके बेसिस पे उन्होंने उड़ीसा पुलिस की मदद से उसको नैरो डाउन किया कि अक्यूज कहाँ पर है, और अक्यूज को अप्रीहेंड किया कल रात के टाइम पे। और उसके बाद आज उसको विद इन 24 आवर्स यहाँ पे लेके आ भी गए हैं। अक्यूज अभी कस्टडी में हमारी, और इसको PI सालीगांव को हैंड ओवर किया जाएगा। इस केस में मैंने बताया कि टीम जो जाके आई वो तो है ही, उसके अलावा बैकग्राउंड में बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, उनका मैं मेंशन करना चाहता हूँ, क्योंकि कोई भी बड़ा केस होता है तो टीम एफर्ट से ही क्रैक होता है, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता है। तो इसमें बैकग्राउंड में SDPO पोरवरिम विश्वेश करपे जो मेरे साथ बैठे हुए हैं, DYSP सूरज हलनकर, PI तुषार लोटलीकर, PI दिनेश गडेकर, इससे पहले PI मिलिंद भी थे सालीगांव पुलिस स्टेशन के, PSI प्रगति मलिक, PSI अमीन नायक, PSI डेविड डिकोस्टा सालीगांव के, PSI मंदार परब पोरवरिम, PSI सीताराम मलिक पोरवरिम, PC संयोग सेठे साइबर, PC हेमंत गांवकर पोरवरिम पुलिस स्टेशन, PC राहुल अंगोलकर सालीगांव पुलिस स्टेशन, हेड कांस्टेबल ईश्वर कास्कर क्राइम ब्रांच, PC प्रणय शेटकर क्राइम ब्रांच, PC शांताराम बोरियकर क्राइम ब्रांच, PC सलीम खान मस्कंटी क्राइम ब्रांच, PC उद्देश शिरोडकर, हेड कांस्टेबल दिनेश श्रीवास्तव, हेड कांस्टेबल चंद्रशेखर पेडनेकर जो पहले बताया, हेड कांस्टेबल विशांत मयकर, PC तुलसीदास गावस, PC विनोद कास्कर, PC सुनील बेगुर, PC सूरज परब। और इसके अलावा बहुत सारे लोग थे जिन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस केस में काम किया और लगे रहे इस केस में, दिन रात हम कुछ ना कुछ इसमें करते रहते थे। तो अभी मैं बताता हूँ, जब हमने अक्यूज को एप्रीहेंड कर लिया है तो उससे पूछताछ करके हमको क्या पता चला। ये तो सबसे पहले पता चला कि ही इज अ नेटिव ऑफ रौड़केला उड़ीसा। ही वाज लिविंग इन रायपुर छत्तीसगढ़ फॉर अ लॉन्ग टाइम। ही वाज बोर्न इन 1977, so 49 years old. He has had training in basic electronics and computer hardware and networking. Trained basically trained वो है क्या बोल सकते हैं, एक्सपर्ट इन सब चीज़ों में, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर हार्डवेयर, नेटवर्किंग, चिप लेवल मोबाइल एंड लैपटॉप रिपेयर, ये सब का भी काम सीखा हुआ है, मोटर रिवाइंडिंग। तो ये सब के चूँकि उसकी एक्सपर्टीज़ है तो उसके बेसिस पे ही यूज्ड टू प्रोवाइड हिज एक्सपर्ट सर्विसेज टू शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स बेस्ड ऑन डिमांड एंड बेस्ड ऑन मंथली सैलरी। तो उसको कहीं भी जहाँ मौका मिलता था, कभी मुंबई में, कभी दिल्ली में, अलग अलग जगह पे इसने काम किया है। तो इस तरीके से हमको इसके फुटप्रिंट पता चले कि अक्यूज कहाँ पे हो सकता है। तो इसको जो जिस तरीके से बुलाता था कोई इसके नेटवर्क के थ्रू या OLX के थ्रू, तो ये वहाँ पे काम करने जाता था। तो ऐसे ही इसको गोवा में अक्टूबर 2025 में लाया गया रिचर्ड डिमेलो और अभिषेक द्वारा। उन्होंने इसको ऑफर किया मंथली रेम्यूनरेशन और रहने के लिए भी रहने का अकोमोडेशन। तो उसके बाद he showed interest and he came to Goa. तो उसके बाद अक्यूज यहाँ पे अक्टूबर में आया and he was provided rented accommodation at the residence of the complainant जॉर्ज नरोना।
डिजीज्ड अभिषेक वाज आल्सो लिविंग इन दैट सेम प्रेमाइसेस. सो दोनों एक साथ ही रहते थे एक फ्लैट में. क्रिमिनल बैकग्राउंड था कुछ? नहीं, अभी तक तो नहीं मिला है. चेक किया हमने ICJS में. बाकी इसके नेटिव स्टेट में और वायरलेस भेज के पता करने की कोशिश करें. तो कितना पेमेंट था उसका? सैलरी 30,000 प्रॉमिस की गई. तो कितने महीने की सैलरी पेंडिंग? 30,000 की सैलरी पे आया था और उसमें थोड़ा बहुत खर्चा इसको खाने पीने का देते रहते थे. बट लड़ाई झगड़ा चल रहा था तो इन एनी केस अगर लड़ाई झगड़ा होता है तो इट शुड नॉट कन्वर्ट इनटू मर्डर. देयर आर लीगल मैकेनिज्म टू रिजॉल्व इट. वन कैन ऑलवेज अप्रोच पुलिस टू रिजॉल्व सच डिस्प्यूट्स. डीके उसको लेके आए थे, वो काम के लिए लेके आए थे सेम, मतलब जो कंप्यूटर नेटवर्किंग उसी काम के लिए. साउंड मिक्सर का काम करते थे. साउंड मिक्सर रिपेयरिंग का काम करते उनके साथ. सर एक अक्यूज को ढूंढने के लिए करीबन 5 से 6 महीने का वक्त लगता है. थे. सो इसमें ये सक्सेस माना जाता है या चैलेंज माना जाता है? देखिए, कोई भी केस जो होता है उसमें एफर्ट पूरा रहता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पुलिस भी पूरी कोशिश करती है तो कभी कभी सक्सेस नहीं मिलती. और ये लाइफ में हर चीज़ के साथ ट्रू है. इट्स नॉट जस्ट पुलिस का एफर्ट. तो इसका ये मतलब नहीं है कि कहीं से कुछ कमी रहती है. कभी कभी अक्यूज बहुत ज़्यादा शातिर होता है, जैसे इस केस में था कि उसको पता था कि कैसे बचना है, लेकिन एट द एंड अगर इतना शातिर होता तो हम उसको पकड़ नहीं पाते. हमने पकड़ लिया. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ऐसे भी केसेस हैं जिसमें 30-30 साल बाद अक्यूज पकड़ा जाता है. आप अगर ऑनलाइन सर्च भी करें, रिसेंटली अभी किसी स्टेट पुलिस ने 35 साल बाद एक मर्डर अक्यूज पकड़ा है. तो फिर भी 5-6 महीने में पकड़े जाना इतने शातिर अक्यूज को, दैट्स एन अचीवमेंट आई वुड से. शादी अपराध है, मतलब क्रिमिनल बैकग्राउंड से आए हुए? नहीं, उसका क्योंकि वो टेक्निकली ही इज वेरी एक्सपर्ट, इसलिए. सर उसको सैलरी डिमेलो से लेना था ना? हाँ, तो अभिषेक गुप्ता का अभिषेक गुप्ता उसका रूममेट था और उनकी दोस्ती पहले से थी. अभिषेक और डिमेलो की दोस्ती पहले से थी. वो दोनों एक साइड पे और ये एक साइड पे. सर पहले अभिषेक का खून हुआ या पहले डिमेलो का हुआ? पहले अभिषेक को, और सुबह डिमेलो को? सुबह डिमेलो. सो ऐसा क्यों? तो बाद में पहले झगड़ा हुआ अभिषेक, कैप्टन? क्योंकि अभिषेक उसका रूममेट था तो अभिषेक के साथ जब सो रहा था तब उसका आर्ग्यूमेंट हुआ. तब उसने अभिषेक को मारा पहले. फिर उसने सोचा कि सुबह जब डिमेलो आएगा तो मैं उससे पैसे लेके मैं निकल जाऊंगा यहाँ से. लेकिन डिमेलो ने उस समय बोला कि मेरे को अंदर घुसने दो, मेरे को अभिषेक से मिलना है. तो चूंकि उसको लगा कि वो एक्सपोज हो जाएगा तो उसने डिमेलो को. सर वो जो बांग्लादेश में आपने जो पकड़ा था वो उसका मैं अलग से दूंगा एक बार जब उनको लेके आएंगे हम. अभी तक लाए नहीं. अभी तक आए. ठीक है, थैंक यू सो मच. डेविड है क्या? वेरी गुड. चलो, बहुत बढ़िया काम हो गया. It came to light that disputes had arisen between the accused and both the deceased on the account of non-payment of salary and remuneration for food. Accused ने बताया कि उसको सैलरी उसको नहीं दी गई, उसको जो भी खर्चा उसको देना चाहिए था वो नहीं मिल रहा था. इस कारण इनके बीच में लड़ाइयाँ चल रही थी. जब से यहाँ पे आया था आपस में 2 बार मारपीट भी हुई है, ऐसा बताया जा रहा है अक्यूज द्वारा. तो ये इसको और भी वेरीफाई किया जाएगा. एंड उस वजह से इनके बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा था और यही बढ़ते बढ़ते उस रात को इतने ब्रूटल अटैक में कन्वर्ट हो गया. उस रात भी इसी बात पे झगड़ा हुआ और सब लोग इन्होंने शराब पी रखी थी तो उस कारण उन्होंने ऐसा कुछ ये कदम उठाया और चाकू से इन दोनों की हत्या कर दी. तो जब कंप्लेनेंट को पता चला था तो कंप्लेनेंट को एक पूल ऑफ ब्लड में दोनों बॉडी मिली थी उस घर के अंदर. तो इस तरीके से ये पूरा प्रकरण हुआ है और इसको हमने सक्सेसफुली सुलझाया है. और आई वांट टू से दैट दिस सक्सेसफुल ऑपरेशन हाइलाइट्स द परसिस्टेंस, coordination and commitment of Goa police in ensuring that absconding offenders are brought to justice even after prolonged periods and across state boundaries. Thank you. So